my utmost pleasure to stand before you today and introduce a remarkable individual who has dedicated her life to understanding the complexities of the human mind. Dr. Meenal Joshi, a renowned scientist from Mumbai, has made a profound impact in her field. She received her doctorate in social science and master's in philosophy from the Tata Institute of Social Sciences. She is practicing in Mumbai independently since June 2013. She worked as a consultant and visiting psychologist at various hospitals and institutes. She also worked as a clinical psychologist at KEM Hospital. She has done tremendous work on autism and published her work in esteemed journals. She possesses a great wealth of knowledge and experience in her respective field, making her a reliable and credible source of inspiration. Today, we have the privilege of having Dr. Meenal Joshi among us. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Meenal Joshi. I'm meeting her for the first time. So far it was all I had heard about her from everyone. And we are very, very fortunate to have her over here. Okay. So she has a very busy practice and she was so warm and, welcoming and coming over here and talking to all of you. Yes, psychology क्या होता है? So साइकोलॉजी का डेफिनेशन अगर हम किताबों में देखें तो इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशंस. तो इमोशंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में जानने के लिए ये दिस इज अ फील्ड ऑफ साइंस विच इज डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंडिंग पीपल, द रीजन व्हाई दे बिहेव इन अ सर्टेन वे, देयर social environments, their family setups, and different kinds of abnormalities in behavior, pathologies in behavior. So broadly, psychology is all about this. So, but it is not just about studying abnormal behavior or studying pathology. It is also about wellness. It is about how to improve one's quality of life. The study also, covers how we can improve our quality of life and functioning, how we can be better functioning people. So broadly, study of psychology is about that. अब आपको जरा वार्म अप कर दिए तो अभी जरा पीछे जाते हैं. हाँ. T=0. आपके बचपन के बारे में बच्चों को कुछ बताएंगे? Okay, so I was raised in a suburb. हाँ, मुंबई का एक सबब है मलाड, जहाँ पे मेरी उत्कर्ष मंदिर नाम की स्कूल, मराठी मीडियम स्कूल से हूँ मैं. और till 10th I was in that school. We did not have the facility of junior college. उसके बाद रूपरल कॉलेज मुंबई में ही मेरी सारी एजुकेशन मुंबई में ही हुई है. So my family consists of 4. My mom is a school teacher, मेरे पापा इंजीनियर है, मेरा भाई भी इंजीनियर है. तो it was a close knit small family और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था हमेशा. और साइकोलॉजी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था. Nobody knew. Back then it was even more unheard of. Taking up psychology was not so common. Now it is fairly common after a lot of awareness has come in. बहुत लोगों को जानकारी होती है साइकोलॉजी के फील्ड की, मगर तभी इतनी नहीं थी. So me taking up arts was also, oh my god, yeah, because my family, my mom is a teacher, science background. मुंबई में साइकोलॉजी लेने के लिए ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेना पड़ता है. तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा था सबको, but they were welcoming, they were open to the idea. I'm very thankful to them that they did let me pursue what I was wanting to. और कॉलेज में मैं रूपरल कॉलेज से हूँ. बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर्स रहे हैं. So for me, Lekha Shri was asking why did you take up psychology? तो I think all credit goes to the professors. इतना सुंदर तरीके से हमें सिखाया गया. अभी भी वो क्लासरूम मेरे सामने आती है, जिस तरीके से हमें डिसऑर्डर सिखाए गए, जिस तरीके से हमें
रियल एग्जाम्पल्स दिए गए तो बहुत इंस्पायरिंग था. तो आई वॉज नेवर, I never had any doubt कि मुझे दूसरा कुछ करना है. The way it was taught, I was 100% sure कि मुझे ये ही करना है, और and hence my efforts were dedicated to that. So आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए. मैं Okay. थोड़ा अंदर जाना चाहता था, पीछे जाना Okay. चाहता था. So बचपन में आपकी फैमिली के साथ जब आपने वक्त गुजारा तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिससे आप इस दिशा में चली गई, और आपको उस वक्त पता था कि ये साइकोलॉजी क्या होता है, और मतलब वो जो एक पहचान होती है कि यही मुझे करना है, वो कहाँ से, वो एक जो इंस्टेंस रहेगा कुछ तो रहेगा, वो बताइए. Honestly, coming from an educated background, still मैंने जैसे कहा कि इतना awareness नहीं था तभी. But my brother is quite a hyperactive, was a hyperactive child and is a hyperactive adult. तो तभी मेरे मॉम ने एक बार, इसके बारे में बताइए, हाइपर एक्टिव क्या होता है? हाँ, तो हाइपर एक्टिव मतलब एक जगह बैठ ना पाना, ध्यान जुटा ना पाना, या थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड होना, या अपनी चीजों का मतलब कुछ करते वक्त 10 चीजें मन में होना तो पूरा ध्यान जुटा के वो चीज ना कर पाना, चीजें घुमा देना, या कुछ करते वक्त ऐसा लगता है कि ये नहीं करना है, कुछ और ही करना है, थोड़ी देर ही मन लगता है, फिर ध्यान हट जाता है, दूसरा कुछ करने का मन करता है. बहुत बार ऐसा होता है कि इम्पल्सिवली, जैसे परिणामों का विचार ना करते हुए चीजें हो जाती है. एक्सीडेंट प्रोन होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा. ये तो आप मुझे डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो ऐसा सिमिलर तरीके का कुछ मेरे भाई के साथ था, वो है इनफैक्ट. तो मेरा भाई 2 साल बड़ा है मुझसे. तो आई रिमेम्बर माई मॉम सीकिंग हेल्प बैक देन. तो बहुत एक धुंधली याद है वो कि मेरी मम्मी एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी तभी, एंड शी वाज डिस्कसिंग अबाउट हिज बिहेवियर. तभी तो इतना मन में नहीं था कि करूंगी ये, या ऐसी कुछ फील्ड होती है. मेरा जैसे साइकोलॉजी का 100% श्योरिटी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही आया है. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज वाज आर्ट्स. There was somebody called Mrs. Babani जो हमारे जूनियर कॉलेज के प्रोफेसर थे. तो वो उनके क्लास फुल होती थी, कभी भी there was not a single absenteeism, मतलब कोई भी एब्सेंट होता ही नहीं था. बाकी क्लासेस में एब्सेंटिज्म हो जाए, मगर इनकी क्लास फुल होती थी, कभी कोई मिस नहीं करता था, और मेरी तो हमेशा 100% अटेंडेंस रही है. सो ऐसी क्या खूबी थी उनमें? टू बिगिन विथ वो बहुत ही ह्यूमन तरीके से सिखाती थी. मतलब इट वाज नॉट लाइक टेक्स्ट बुक्स, वो रियल एग्जांपल्स देना, रियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती थी. सो इट वाज नॉट लाइक अ ब्लैक बोर्ड एंड द बुक्स काइंड ऑफ अ थिंग. वो हमेशा हमें सवाल पूछती थी, हम टॉपिक्स के बारे में बात करके, इट वाज लाइक एन ओपन एंडेड सेशन. तो बहुत ज्यादा हम एक दूसरे के साथ भी जेल हो जाते थे. तो दैट वाज वन डिफाइनिंग फैक्टर व्हाई वी जस्ट लव्ड हर. और फिर आपने वहाँ बीएससी बीए किया. हाँ. और उसके बाद में आप मतलब स्पेशलाइजेशन, उसके हाँ. बारे में बताइए कैसे. तो जैसे मैंने कहा कि प्रोफेसर्स हमारे बहुत अभी भी जब मैं फोन करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आपकी वो आप जो क्लास में पढ़ाते थे ना, वो अभी भी याद है. तो वो in Mumbai we have 4 branches: clinical psychology, counseling psychology, industrial psychology and social psychology. तो clinical psychology में primarily बहुत ज़्यादा abnormal behavior, pathology के बारे में पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, especially when it comes to Mumbai. तो वो एरिया एक बहुत ज़्यादा fascination था मेरे लिए. मगर मुंबई यूनिवर्सिटी में there is a cut off or limited seats, and so मुझे मिली एडमिशन काउंसलिंग साइकोलॉजी में. हाईएस्ट मतलब वो जो ज़्यादातर तभी इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल में जाते थे लोग, मुझे इंडस्ट्रियल में नहीं जाना था. आई वाज वेरी श्योर दैट आई वांटेड टू वर्क विथ चिल्ड्रन, आई वांटेड टू वर्क इन हॉस्पिटल्स. तो ऐसा हुआ कि नहीं मिली एडमिशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में. तो आई वाज प्रिटी सैड कि नहीं, मगर ठीक है, अभी दूसरा ऑप्शन नहीं था. बट फॉर्चुनेटली क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट यूएस चला गया, सो देयर वाज 1 सीट.
वेकेंट, एंड हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजी के बच्चों के, तो जितने कम स्टूडेंट्स है उतना प्रोफेसर्स ज़्यादा मैनेज अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज ऑल वर्क इज सुपरवाइज्ड। कोई स्टूडेंट अकेला नहीं रहता है, कोई ना कोई सुपरवाइज वर्क रहता है हॉस्पिटल में, सो दे डिडंट वांट टू टेक अप अनदर स्टूडेंट। तो जब पता चला तो मैं पीछे पड़ गई प्रोफेसर के, नहीं मुझे चाहिए, सो शी टुक माई इंटरव्यू गुड हाफ एन आवर, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, यू आर कंफर्टेबल इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्यों करना है? बोला नहीं, मुझे दूसरा कुछ करना ही नहीं है, मुझे नॉर्मल साइकोलॉजी और पैथोलॉजी का इतना ज़्यादा फैसिनेशन है that I can't think about anything else. And then she said, okay, might as well. And hence this way I landed up in clinical psychology. अभी बच्चों के मन में एक प्रश्न भी रहेगा कि साइकोलॉजी और साइकियाट्री इसमें क्या फर्क है? Okay, so साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, मेरी डिग्री साइकोलॉजी में है, मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। आई कैन डू असेसमेंट्स, मैं टेस्टिंग करती हूँ। मतलब क्या, तो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके लिए टेस्ट्स करना ज़रूरी है, जैसे आईक्यू टेस्ट हुआ, पर्सनालिटी टेस्ट हुआ, या इमोशंस के बारे में टेस्ट हुआ, तो वो सारे टेस्ट्स मैं कर सकती हूँ। मैं थेरेपी करती हूँ। साइकोथेरेपी इज व्हाट, व्हेन देयर आर पीपल, लोगों को अगर अपने लाइफ में डिफिकल्टीज आ रहे हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए करते वक्त डिफिकल्टीज आ रहे हैं, जॉब, एजुकेशन, फैमिली से रिलेटेड कुछ डिफिकल्टी आ रहे हैं, या इवन पॉजिटिव चेंजेस आते वक्त उनमें कुछ उन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए, तो वी आर देयर टू डू थेरेपी, थेरेप्यूटिक वर्क। हम मेडिसिन नहीं दे सकते। सो वी आर साइकोलॉजिस्ट्स and there are psychiatrists. So who are psychiatrists? They are people who have degree in medicine. मतलब उनकी first MBBS होती है, तो वो first MBBS करते हैं, and then they do either a diploma or a full MD in psychiatry. So they prescribe medicines for psychiatric disorders. जैसे अगर बहुत severe depression है, या फिर तो बहुत severe psychotic disorders है, या there are several other disorders which require medicine, तो उनके लिए साइकियाट्रिस्ट होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, दे हैव अ डिग्री इन मेडिसिन। आपने तो मतलब मैंने जब आपका बायोडेटा देखा तो बहुत साल से आप इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप कंसल्टेंट और मतलब इंक्लूडिंग केईएम में आपने काम किया है, तो आपके नजरिए में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रहेंगे। मुझे पता है कि ये बहुत पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप इज अ वेरी प्राइवेट रिलेशनशिप, फिर भी बहुत सारे हादसे आपने देखे रहेंगे जिन्होंने आपको कई बार इंस्पायर भी किया रहेगा और कुछ तो सेटिस्फैक्शन आपको मिला रहेगा उसमें कि मैंने कुछ मदद की इस, तो ऐसे ऐसी कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं? Yeah, surely. So, KEM हॉस्पिटल एक बहुत अलग तरीके का काम था, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, पूरे देश भर से लोग वहाँ आते थे, तो बहुत कोने कोने से लोग मिलते थे और बहुत अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग वहाँ मिलते थे। वहाँ पे हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में बहुत बच्चों से रिलेटेड भी काम किया और एडल्ट से रिलेटेड भी काम किया है। तो जैसे टेक्स्ट बुक प्रेजेंटेशन कहते हैं ना, जैसे साइकोलॉजी के बुक्स में जैसे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शंस के लोग हमें वहाँ, मतलब इनको देख के ये बुक में लिखा गया है, ऐसे हमें लगता था, वी वुड फील दैट वे। सो आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, मगर देयर इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर जहाँ पे मैनिक एपिसोड्स होते हैं लोगों को, जैसे बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली चीज़ें करना, नींद ना आना, ये सारे उसमें सिम्टम्स होते हैं। तो एक औरत आती थी, उसे ऑन एंड ऑफ मैनिया के सिम्टम्स आते थे, और जिस तरीके से आके वो एक पॉइंट के बाद अवेयरनेस आ गई थी उसे कि हाँ मुझे ये एपिसोड्स आते हैं, तो वो खुद ही चली आती थी। उनको खुद पता था? हाँ, ऐसे नहीं कि आजू बाजू वाले लोगों ने। सो दैट इज वन थिंग कि
अवेयरनेस बिल्ड हो जाने के बाद वो लोग खुद आ जाते हैं, दे नो दैट दिस इज कमिंग, ये हो रहा है अभी मेरे साथ, तो मुझे टाइम पे जाना है, नहीं तो हाथ से बाहर निकल जाएगी, बात बिगड़ जाएगी, ये पूरी बिगड़ने तक मुझे नहीं रुकना है। ये उनको एक एक्सपीरियंस के बाद पता चल जाता है। तो द वे शी वुड टॉक, शी वुड सिंग इन द डिपार्टमेंट, शी वुड बी एक्सट्रीमली इम्पल्सिव। वो ड्रेसअप एक तरीके से होती थी बिकॉज शी वाज सुपर कॉन्फिडेंट, she felt that she can do anything। तो बहुत ज्यादा ड्रेसअप होना, डॉक्टर से भी ओवर फेमिलियर होना, तो ये सारी चीजें मतलब वो अभी भी याद है। इवन व्हेन वी वर प्लेस्ड इन हॉस्पिटल्स, वी हैव वर्कड इन थाना मेंटल हॉस्पिटल, सो वहाँ पे एक्सपीरियंस ये है कि लोग सही हो जाते हैं, लोग ट्रीट हो जाते हैं, मगर बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा इन द सोसाइटी कि इनको साइकेट्रिक इलनेस था तो हमें वापस नहीं चाहिए ये लोग, उनको। हाँ, आप ये सब चीजें बता रही है, तो ये तो अच्छी चीज है, right? मतलब इतना कॉन्फिडेंट होना ये तो अच्छी चीज है, तो फिर इसको क्योर क्यों करना है? Okay, so there's a clear difference between being confident and being so overconfident that you take up things which are not within your reach. You chew more than you can. So एक example देती हूँ, मैं बहुत confident हूँ तो मैं इस एग्जाम में जाके confidently पेपर लिखूंगी, so that is my confidence। या मैं बहुत confident हूँ तो मैं मेरे oral एग्जाम में बहुत अच्छे से जवाब दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा नॉलेज क्या है। मगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं 10 तरीके के प्रोजेक्ट्स ले लूंगी एज एन एडल्ट, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, मुझे ये भी पॉसिबल है, एंड इन बार्गेन वो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मैं एस्टिमेट नहीं कर पाती हूँ मेरी योग्यता क्या है या मेरी लिमिटेशंस क्या है। या फिर तो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेना, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लेना, पैसे क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर लेना जो हानिकारक है, मगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई इस वो फेज में, इसलिए मैंने वो डिसीजंस ले लिए। सो दैट इज द फाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट and being seriously confident, meaning confident in such a way which is harmful to me। तो अगर ऐसी स्टेट में कोई हो और उन्होंने कुछ मदद नहीं ली तो क्या होता है? So वो वैसे ही रहते हैं या कभी नीचे भी आ जाते हैं? Generally it stays that way। you need to seek help, नहीं तो वो लंबे समय तक चलता है और बहुत हानिकारक चीजें भी लोग कर लेते हैं, जैसे रेकलेस ड्राइविंग कर लेना, रेकलेस बिजनेस डिसीजंस लेने के वजह से बैंकरप्ट हो जाना, या फिर तो रेकलेस रिलेशनशिप्स में पड़ जाना, या चीजें ऐसी करना जो रिवर्सिबल नहीं है, और फिर वो पूरी लाइफ पे असर करती है, और फिर उनको भुगतना पूरी। एंड जनरली व्हाट हैपेंस इज मेनिया कम्स and there's depression after mania, there's a possibility कि depression आ जाए उसके बाद में। तो when the reality hits, when it is down, we don't know when it is down, अगर medicine नहीं लिया या treat नहीं किया तो there is going to be a phase where it will be down again, nobody can know when, but then they will understand the consequences of क्या मैंने decisions ले लिए वो मेरे phase में। जो हमें sadness लगता है ना कुछ ना होने के बाद, एग्जाम में बुरे मार्क्स मिल गए, या फिर मम्मी ने डांट दिया या पापा ने मार दिया तो बुरा लगता है, दैट इज सैडनेस। हाँ, तो वो सैडनेस और डिप्रेशन, इसमें बहुत फर्क है। और क्या फर्क है तो शास्त्रीय भाषा में अगर बोला जाए तो अगर 4 हफ्ते के ऊपर ये हमारा सैडनेस चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, और सिर्फ एक चीज को लेके सैडनेस नहीं है, पूरे दिन ज्यादातर टाइम हमें वो सैडनेस का एहसास होता है। उसके बाद लो कॉन्फिडेंस, उसके साथ सिर्फ सैडनेस नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसे हम बोलते हैं, समूह है अलग अलग सिम्टम्स का। तो क्या क्या होता है इसमें, दुखी लगना, बहुत कॉन्फिडेंस ना लगना, जो चीज मैं बहुत अच्छी कर पाती थी, मेरी स्पेशलिटी थी, वो चीज भी मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लगता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं वर्थलेस हूँ, ये मेरी योग्यता ही नहीं है, ऐसे मन में विचार आना। इनडिसाइसिव होना, मतलब क्या मैं ये करूं या मैं ये कर सकती हूँ या ये नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना, और ये करने के बाद भी वो करती तो ज्यादा अच्छा होता है, ये मन में विचार आना। इसके अलावा नींद में खराबी, मतलब नींद में डिसरेगुलेशन कैसे होता है कि बहुत ज्यादा नींद आना या बहुत कम नींद आना। हमें ज्यादातर 7 से 8 घंटा नींद की जरूरत होती है, अगर बच्चे हैं तो यू गाइस शुड बी स्लीपिंग इवन मोर, मगर डिप्रेशन में ऐसे होता है कि लोग 2-3 घंटा सोते हैं,
इनिशिएशन में डिफिकल्टी आती है, मतलब नींद शुरू ही नहीं होती है, 2-2 3-3 बजे तक जागना, फिर सोना, या फिर तो जल्दी उठ जाना, या नींद के बीच उठ जाना, या बहुत ज्यादा सोना। पेरेंट्स आके बोलते हैं या लोग आके बोलते हैं अरे तो सोता ही रहता है, दिन भर सोता है, रात में भी सोता है। इसके अलावा भूख में भी चेंजेस आते हैं, बहुत कम भूख लगना, वजन कम हो जाता है लोगों को। इवन अननोन पीपल कैन लाइक पीपल जो आपको हमेशा नहीं देखते हैं, ऐसे लोगों को भी समझ में आता है कि आपका वजन कम हो गया या बढ़ गया, बढ़ भी जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, कभी कभी बहुत वजन बढ़ता है। इसके अलावा वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मर जाने के विचार आना। जैसे इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, मैं मर जाऊंगा तो अच्छा होगा, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, या मैं बहुत ही नालायक किस्म का इंसान हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो भी घर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये विचार आना। मैं मर जाऊं तो क्या होगा, पैसिव, जिसे हम पैसिव डेथ विश बोलते हैं, कि मैं नहीं होता तो क्या क्या होता, मैं मर जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे। और एक्टिवली सोचना मतलब क्या, कि मैं अभी कूद जाता हूँ ट्रेन से, या मैं ये जहर खा लेता हूँ, या मैं खुद को लटका देता हूँ पंखे से। ये एक्टिव सोचना कि मेरी लाइफ एकदम खराब है, मैं जीने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सीरियस सोच, मन में विचार आना, ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। सो डिप्रेशन इज नॉट सम मोमेंटली फीलिंग, द सैडनेस विच यू फील आफ्टर सम एपिसोड इन योर लाइफ, बट इट गोज ऑन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, जिससे कि हमारी लाइफ में एजुकेशन सही नहीं हो पा रही है शायद, या काम सही से नहीं हम कर पा रहे हैं, या हमारे रिश्तों में खराबी आ रही है। जैसे बच्चों में बहुत बार देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत चिड़चिड़ाहट के रूप में दिखता है, हर चीज में गुस्सा आता है, हर चीज में ऐसे लगता है कि नहीं मुझे इसको मारना ही है, अग्रेशन दिखता है। बच्चों में ये भी दिखता है कि कभी कभी उनके स्कूल के मार्क्स पे असर पड़ने लगता है विदाउट एनी रीजन, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत होशियार बच्चा है, अगले पिछले साल तक अच्छे नंबर ला रहा था, अभी अचानक वो पढ़ नहीं रहा है, अभी अचानक कुछ कर नहीं रहा है। बहुत बार बच्चों में ये भी दिखाई देता है कि कुछ अलग चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि बिस्तर गीला करने लगना, या फिर तो अपना ध्यान सही से ना रख पाना। बहुत सीवियर डिप्रेशन में लोग खुद का ध्यान नहीं रख पाते, जैसे नहा नहीं पाते, अपने कपड़े नहीं बदलते। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें फर्क करना समझना चाहिए कि इट इज just momently we are feeling sad about some episode in life, or it is depression. ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बच्चों, तो इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत मतलब हमें इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। और अवेयरनेस खुद के लिए नहीं चाहिए केवल, अपने आपके दोस्त रहे, आजू बाजू का परिवार रहे, जस्ट बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। सबके साथ ये अवेयरनेस रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको शायद ना इसका असर हो आपके ऊपर, लेकिन अगर आपको दिखाई दिए ये परिणाम किसी के साथ, तो आपको किसी को बताना चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ, मेरे साथ मेरे क्लास में एक बच्चा था, बच्चा नहीं कहते, मतलब एडल्ट था, लड़का था, क्योंकि इंजीनियरिंग में है, और वो हमेशा उसकी आंखों से पानी आता था, और ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम चल रहा था। लेकिन मैं भी वो कोरिलेट कर रहा हूँ जो आप बता रही है। और एक दिन शाम को उसे लेके हॉस्टल के कोई बच्चे मेरे पास आए कि सर ये हो रहा है, और हमारा एग्जाम था नेक्स्ट डे, तो नथिंग डूइंग, यू आर नॉट वरिंग अबाउट द एग्जाम, ये एग्जाम वगैरह सब बात की बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। तो उसे हमने इमीडिएटली मेडिकल हेल्प उसे दिलवा दी। और बहुत अच्छी बात थी कि उसके आजू बाजू उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत अवेयर हो गए थे कि कुछ तो बदलाव हो रहा है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी कि सोचिए इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के जमाने में इश्यू है। क्योंकि बहुत सारी, मैं भी आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको ये अवेयर रहना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सही कहा मैंने? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने मैनिया के बारे में, मतलब जो एक्सट्रीम हाई के बारे में बात की, और एक्सट्रीम लो और डिप्रेशन के बारे में बात की। कभी ऐसा होता है जब लोग दोनों तरफ जाते हैं? ये जो दोनों तरफ मैंने एक साथ,
मैं पूछ रहा हूँ नहीं, आपको, सो हाँ। एपिसोड्स ऐसे होते हैं कि ज्यादातर कुछ महीनों के लिए मैनिक एपिसोड चलता है और फिर कुछ महीनों के लिए डिप्रेशन चलता है. सो कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लबाइल मूड, जिसे हम बोलते हैं कि एकदम से बहुत हाई और एकदम से लो, ये भी इमोशनल डिसरेगुलेशन हो सकता है. मगर ज्यादातर कॉमन है कि एक एपिसोड चले, फिर एक प्लेट्यू एंड देन अगेन लो एपिसोड चले. आपने ऑटिज्म करके वर्ड एक आ गया था, उसके बारे में बच्चों को बता दें, क्योंकि आपको सीखना भी है. मतलब ऐसे नहीं कि हर चीज को, जैसे मैंने अभी ट्राई किया कि अरे ये तो मेरी, आप मुझे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसे मत सोचिए. क्योंकि जब भी आप गूगल पे कुछ डिसीज के बारे में पढ़ते हो तो आपको लगता है अरे ये तो मुझे भी हो रहा है. लेकिन ऐसे कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोगों ने उसका डिसीजन लेना बहुत महत्वपूर्ण है. तो फिर आप ऑटिज्म के बारे में बताएं सर. यस, तो आपने सुना है ये वर्ड ऑटिज्म? नहीं? ओके, सो बहुत कॉमन है. अप्रोक्सीमेटली 68 लोगों में से एक को ऑटिज्म होता है, और वो बच्चों में साल भर का बच्चा है तभी उसके सिम्टम्स हमें समझ में आने लगते हैं. तो ऑटिज्म कुछ एक सिम्टम नहीं है, एज आई सेड अर्लियर, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अगेन. हाँ, तो ये ग्रुप क्या है? तो वो ब्रॉडली हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो कम्युनिकेशन, दूसरा है सोशल इंटरेक्शन माने लोगों में मिक्स होना, और तीसरा है रिपीटेटिव इंटरेस्ट एंड बिहेवियर पैटर्न्स. तो उसमें क्या क्या होता है? ज्यादातर पेरेंट्स इसलिए हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं कर रहा है, 2 साल का हो गया फिर भी बात नहीं कर रहा है. तो दैट इज वन हॉलमार्क, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत कॉमनली देखा गया सिम्टम है. मगर ऑटिज्म की विशेषता या खूबी ये है कि मैं अगर 10 बच्चे आपके सामने रख दूं तो वो 10 बच्चे सेम नहीं होंगे. एवरी चाइल्ड हैज अलग सिवियरिटी होती है सिम्टम्स की, अलग अलग एज के हिसाब से भी उनके सिम्टम्स बदलते जाते हैं. तो बात ना कर पाना, अगर बात कर रहे हैं तो भी हम बोले वो वापस बोलना, जिसे हम इको बोलते हैं. या फिर तो सिर्फ काम के लिए बात करना, इमोशंस के बारे में बात ना कर पाना, सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी है माने उनके एज के फ्रेंड्स नहीं हो पाते, या उनको इमेजिनरी गेम नहीं खेल पाते. इमेजिनरी गेम मतलब क्या? अगर 2 साल का बच्चा मेक बिलीव प्ले खेलने लगता है, झूठ मूठ का घर बनाना, झूठ मूठ की गाड़ी चलाना, झूठ मूठ का कुकिंग करना, ये सब नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा उनको इमोशनली लोगों से जुड़ना डिफिकल्ट होता है कि अभी मम्मी गुस्सा है, मम्मी मुझे गुस्से से बात कर रही है, या ये गेम का ये रूल है और मुझे इस हिसाब से खेलना है, ये उनको नहीं समझ में आता है. तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज है कि रिपीटेटिव इंटरेस्ट और बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं. मतलब क्या? तो कुछ बिहेवियर पैटर्न्स उनमें रिपीटेडली दिखाई देते हैं, जैसे हाथ फ्लैप करना, गोल घूमने में फैसिनेटेड रहना, पंखे को देखते रहना, या फिर तो एक ही चीज बार बार करना. जैसे अभी कुछ गेम्स दे दिए तो लाइन में लगा के रखना, या फिर तो एक ही तरीके से रिजिडली खेलना, बस मुझे यही तरीके से खेलना है, आप नया इंट्रोड्यूस करोगे तो मुझे नहीं चाहिए. रूटीन उनका बहुत फिक्स रहता है, मुझे मम्मी ही खाना खिलाएगी, पापा ही स्कूल ले जाएंगे, पापा के जगह मम्मी स्कूल ले गई, दादी स्कूल ले गई तो आई विल थ्रो अ रकस. इसके अलावा कुछ सेंसरी डिफिकल्टीज हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा टच के लिए सेंसिटिव होना या आवाजों के लिए सेंसिटिव होना, तो बच्चे बार बार कान बंद करते हैं. या बहुत बार उनको ऐसा भी होता है कि कुछ टाइप के कपड़े सूटेबल नहीं रहते हैं, तो दे आर वेरी इरिटेबल अगर नए कपड़े पहना दो या टाइट कपड़े पहना दो. या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ बच्चे आते हैं जिनको ओरल सेंसिटिविटी है, तो वो च्यू नहीं कर पाते हैं. 2-2, 3-3 साल के बच्चे आते हैं जो सिर्फ दूध पी रहे हैं अब तक. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. मैंने कुछ कम सिम्टम्स, कुछ सिलेक्टेड सिम्टम्स आपको बताए हैं. आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट बिकॉज इट्स अ बिग एरिया. एंड प्राइमरीली 2 साल के पहले ये समझ में आ जाना चाहिए. अवेयरनेस improves in society. Early intervention can really work wonders. One thing, IQ और ऑटिज्म ये 2 अलग चीजें हैं. मेरी बहुत अच्छी IQ हो सकती है और मुझे ऑटिज्म भी हो सकता है. So we cannot mix that.
ऐसा नहीं है कि मुझे ऑटिज्म है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. इन माई रिसर्च व्हेन आई वाज डूइंग PhD आई हैव सीन 30 साल के लोग भी हैं जो इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं और उन्हें ऑटिज्म है. सो देयर इज दिस वाइडली स्प्रेड. मतलब इंटरनेट पे देखा जाए तो क्या है, सिर्फ डार्क इन्फॉर्मेशन है ऑटिज्म के लिए कि एक बार हो गया तो इट इज डिफिकल्ट. मगर ऐसा नहीं है. पेरेंट्स हैव वर्कड रियली हार्ड और बहुत अच्छे आउटकम्स भी देखे गए हैं लोगों में. तो उन्हें कैसे संभाला जाता है, उनको कैसे दिशा दी जाती है? ओके, सो प्राइमरली अर्ली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट. जितना जल्दी समझ में आए, पकड़ में आए, उतना जल्दी फायदा होता है. टू बिगिन विथ कुछ बहुत रिसर्च बेस्ड तरीके हैं जिससे फायदा हुआ है लोगों को. स्पीच थेरेपी होती है जो अलग एक स्पेशलाइजेशन है डॉक्टर्स की, जो सिर्फ बात करने के लिए सिखाते हैं बच्चों को. ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, दैट इज बेसिकली उनके सारे सेंसेस. और ऑटिज्म में एक वेरी कॉमनली सीन सिम्टम इज देयर इज अ डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट. तो ये सारी चीजों पे साइंटिफिकली कुछ देयर आर सम यू नो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज साइंटिफिक गेम्स होते हैं जिसे एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रेन करके बच्चों के साथ खेला जाता है जिससे बच्चों को फायदा होता है. और हमने पैंडेमिक में ये भी देखा कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के वजह से भी जो बच्चे 2021 या 22 में पैदा हुए उनको ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स दिखाई दिए हैं. तो स्क्रीन टाइम हटा देना, आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाना, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना, ये चीजें भी बहुत फायदे करती है. तो आपका कहना ये है कि उन्होंने इन बच्चों में धीरे धीरे बदलाव आते जाते हैं और वो नॉर्मल जिंदगी जी सकते. देयर इज सी ऑटिज्म. हाँ, weird तो word. ऑटिज्म का ऐसा है ऑनेस्टली कि ऑटिज्म के सिम्टम्स थ्रू आउट योर लाइफ रहते हैं, मगर कौन से रहेंगे, कितने रहेंगे, वो आपकी रोज के लाइफ में आपको कितना बॉदर करेंगे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हर एक बंदे की ट्रैजेक्टरी सेम नहीं रहती है. इफ trained well, if given the right exposure, if given the right therapy और intelligence भी सही है, बच्चा 5 साल के अंदर बात करना शुरू हो गया है तो there is a good likelihood कि बच्चा अच्छा प्रोग्रेस करेगा. मगर there is no rule book कि करेगा ही 100% because autism के symptoms are known to persist, they are known to stay. तो ये बच्चे पढ़ाई, एग्जाम्स का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम? Yes, with the right awareness, टीचर्स में अवेयरनेस हो, टीचर्स को ये जानकारी हो, पेरेंट्स को ये जानकारी हो, तो थोड़ा उनको कंड्यूसिव जिसे कहते हैं कि बहुत अगर नॉइजी क्लासरूम्स में उनको तकलीफ हो रही है तो एग्जाम्स देते वक्त शायद उनको थोड़ा सा शांत माहौल दिया जाए या कुछ अलग तरीके से उनको थोड़ा हैंडल करके आई थिंक दे स्टिल कैन मैनेज. अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन सीवियरली अफेक्टेड जो बच्चे हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट है ऑनेस्टली, मगर जो मॉडरेट या थोड़े माइल्डली अफेक्टेड बच्चे हैं देयर इज अ गुड लाइक्लीहुड दैट दे कैन स्टडी. आपने बंदों की बात की, यहाँ तो सारी बंदियां हैं. यस, राइट, सॉरी. नहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट ना. हाँ. तो और ये सब टीनेजर्स, 9th मतलब टीनेजर्स ही है ना, करेक्ट ना? हाँ, टीनेजर्स. तो बहुत सारे इश्यूज ये फेस करते हैं. तो शायद उनके बारे में कुछ बताए. मुझे पता नहीं है लेकिन आप ओके, सो टॉपिक ओपन कीजिए. ओके, सो हम थोड़ा सा लाइट चीजों से शुरू करेंगे एंड देन विल गो टू मोर डिफिकल्ट थिंग्स. बहुत बार ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बाकी चीजें बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं बच्चे, रोज की लाइफ बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं, अपने काम खुद कर पा रहे हैं, मगर रीडिंग राइटिंग में डिफिकल्टी है. ऐसे होता है बहुत लोगों को. दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास, टीचर समझा रही है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, मगर जब लिखने की बारी आती है तो लॉन्ग आंसर्स नहीं लिख पाते या विस्तार से आंसर्स नहीं लिख पाते, या गणित में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है या बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, चिंता लगने लगती है, डर लगने लगता है एक सब्जेक्ट का. सो पॉसिबिलिटी है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो. लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, लोगों से बात करने में, लाइफ जीने में कोई डिफिकल्टी नहीं है,
रोजमर्रा के कामों में भी डिफिकल्टी नहीं है, समझने में ही कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस रीडिंग राइटिंग या मैथ्स में डिफिकल्टी हो सकती है। तो उससे क्या होता है कि टीचर समझा रही है, वो समझ पा रहे हैं मगर एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो गया और अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो शायद कॉन्फिडेंस में डिफिकल्टी आ जाती है, मैं कोई काम का नहीं हूँ, हंसने लगते हैं लोग, बच्चे हंसने लगते हैं, सिंगल आउट करने लगते हैं कि अरे ये तो फेल हो रही है, ये नहीं कर पाती है। घर वाले भी थोड़ा नजरअंदाज करना शुरू करते हैं। तो ये एक इशू है जो बहुत कॉमनली हमें समझना जरूरी है कि अगर वैसा है तो बात करना जरूरी है, टीचर्स को बताना जरूरी है, पेरेंट्स को बताना जरूरी है, जिससे कि आपको अच्छे से गाइड कर पाए, डायग्नोसिस हो पाए ये चीज का, जिसकी वजह से आपको अगर डायग्नोसिस होता है तो कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं बच्चों को, जैसे उनके स्पेलिंग एरर्स नजरअंदाज किए जाते हैं। अगर राइटिंग में इशू है आपको तो आपको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अगर रीडिंग में बहुत ज़्यादा इशू है तो आपको कोई रीडर मिल सकता है, जैसे कि बाकी आप सब बहुत अच्छा कर लेते हैं मगर आप क्वेश्चन पेपर ही रीड नहीं कर पाते, तो दैट कैन बी अ सीरियस इशू। सो रीडर आपको मिल जाएगा। या आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी में एग्जेम्पशन भी होता है, मैथ्स हम छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट लेके यू कैन go ahead and study. So that is about learning disability. और एक चीज shall I yeah, so एक और चीज ऐसी है जो ये एज में हमें बहुत फर्क पड़ता है कि हमारा अपीयरेंस क्या है, हम कैसे दिखते हैं, मैं अच्छी दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ, मैं गोरी हूँ काली हूँ, हाइट कम है ज़्यादा है, बाल ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये एक ये एज में ना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। हम टीवी पे बहुत चीज़ें देखते हैं, ये इतनी सुंदर है, ये ऐसे करती है, मैं ऐसे करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, ये करने से मैं सुंदर लगूंगी, ये करने से मैं पॉपुलर हो जाऊंगी, ये करने से मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। ये चीज़ें बहुत ये एज में इम्पोर्टेंट लगता है कि मेरा अपीयरेंस, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा अपीयरेंस। अपीयरेंस इज रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ, ये एज में ऐसा हो जाता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी या मैं मिक्स नहीं होंगी, तो दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, अपने आप को कैसे मोल्ड योर सेल्फ इन सच अ वे, हैव रोल मॉडल्स इन सच अ वे कि आप जो चीज़ों पे अपना नियंत्रण नहीं है वो चीज़ से ध्यान हटा के जो चीज़ पे अपना नियंत्रण है वो चीज़ पे हम फोकस करें। जैसे पढ़ाई करना, इस पे हमारा नियंत्रण है तो हम कर सकते हैं, या हमारी फील्ड चुनना, आगे जाके हमें क्या करना है, इस पे हमारा नियंत्रण है। मगर मेरी हाइट कितनी है, मेरा रंग क्या है, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। तो कॉन्फिडेंस शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू व्हाट यू कैन डू and what you can achieve rather than what is given to you or what is what is already not decided by you. तो ये एक फैक्टर है जो I thought is also important and thirdly कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एज में कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें भी हो सकती है, जैसे कि आपको गुड टच बैड टच, ये चीज के बारे में बात की गई है, कभी स्कूल में बातें होती है इसके बारे में? ओके, सो अगर कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हो गई तो क्या करना है, इसके बारे में बात होती है। बहुत बार हमें लगता है कि इट इज ओनली अबाउट टच, सिर्फ उसके बारे में नहीं है, मगर बहुत सी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे हमें अनकंफर्टेबल लगे ऐसी कोई भी चीज दिखाना, हमें कोई जो कुछ भी अनकंफर्टेबल लगे ऐसी चीज हमसे एक्सपेक्ट करना, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि अपने मर्जी के खिलाफ कुछ दिखा देना, आजकल मोबाइल पे पॉसिबल है, मोबाइल पे नहीं तो तस्वीरें पॉसिबल है या नोट्स पॉसिबल है। ये चीजें जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, अगर आपके साथ हो रही हैं तो हाउ डू वी डील विथ इट? टू बिगिन विथ, कभी भी चुप नहीं रहना है इसके बारे में। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मन में सबसे पहले विचार क्या आता है लोग, बच्चों के, किसी के भी,
कि अरे मेरा कुछ गलत हो गया क्या, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैंने कुछ गलत करने के वजह से ये मेरे साथ हो रहा है, तो नो, ऐसा नहीं होता, आपकी गलती के वजह से ये आपके साथ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि ये हमें समझना है कि ये गलत है, और ये किसी एकदम जिसे कहते हैं जिस पे आपका विश्वास है ऐसे व्यक्ति को बताना जरूरी है। वो कोई भी हो सकता है, आपका बड़ी बहन हो सकती है, बड़ा भाई हो सकता है, प्रोफेसर, टीचर, कोई भी हो सकता है, पेरेंट, मगर सबसे पहले बताना जरूरी है। और इससे ही आगे कुछ हो सकता है कि वो ही व्यक्ति आपको सुरक्षित रख सकता है, या वो ही व्यक्ति आपको दे कैन सी टू इट दैट यू आर इन अ सेफ स्पेस। मगर समझना कि आप जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। आपने एक बहुत ही संवेदनशील बात कही है। मैं थोड़ा आगे लेना चाहता हूँ उसे कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी रहती है, मैंने केवल मूवीज में देखी है, लेकिन आपने शुरुआत तो की, लेकिन मोलेस्टेशन, फिजिकल और इमोशनल चाइल्ड अब्यूज ये होता है, भारत में भी हो रहा है। तो पहले बच्चों को समझना चाहिए ये क्या है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, और अगर ऐसे हो रहा है तो फिर उसे कैसे, आपने आधा आंसर तो ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं उस क्षेत्र में जाके सब बच्चों को कुछ उसके बारे में आप बता सके तो अच्छा रहेगा। तो एक तो ऐसा है ना कि बहुत बार हमें समझ में ही नहीं आता है कि गलत हो रहा है हमारे साथ। तो जो चीज जैसे आपको डिटेल में स्कूल में समझाया ही गया होगा कि हम अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने तो वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम का जो एरिया हमारा बॉडी कवर करता है, वो बॉडी पार्ट को अगर कोई देखता है, टच करता है, या इफ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग, इट कैन बी मेल और अ फीमेल, ये गलतफहमी है कि सिर्फ लड़का ही ये चीज कर सकता है, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो अगर वैसा कुछ होता है, टू बिगिन विथ ये समझना जरूरी है कि ये गलत है। तो दिस इज अबाउट सेक्सुअल अब्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और अगर समझता है ये, वो बहुत बार पहचान के लोग होते हैं, बहुत ही करीबी लोग होते हैं, बहुत बार घर के लोग होते हैं, तो एक तरीके का टैबू होता है कि मैं कैसे बताऊं, लोग मुझे ही गलत समझेंगे। तो सबसे पहले बताना इज द फर्स्ट स्टेप, इवन इफ दैट पर्सन इज योर फैमिली मेंबर, अगर इवन घर का हो व्यक्ति, फिर भी बताना जरूरी है किसी बड़े को, या कि ऐसे व्यक्ति को जो अथॉरिटी में है या कुछ आपकी मदद कर पाए, उससे ही आगे जाके आपको कुछ राह मिल सकती है। बहुत बार फैमिलीज में इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीटली डिसोन दैट पर्सन, ये रिपोर्ट भी नहीं होता है, या कायदे के अनुसार बहुत से लोग ये समझते हैं कि कायदे का इस्तेमाल नहीं होना, मतलब पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द फैमिली डायनामिक्स। तो उनको सजा तो नहीं मिलती है, बट एटलीस्ट योर पेरेंट्स और द एल्डर पर्सन कैन डिसाइड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड यू नो कीप यू सेफ। ये हुआ सेक्सुअल अब्यूज के बारे में। सेकंड है, कुछ क्लासरूम्स में भी इमोशनल अब्यूज हो सकता है, जैसे कि सिंगल आउट करना एक बच्चे को, और अलग ग्रुप बना लेना, जैसे ग्रुपिज्म कहते हैं, बुलिंग जिसे हम बोलते हैं, कि ये बहुत अच्छा पढ़ लेती है, ये आंसर्स बहुत अच्छे करती है, ये बहुत होशियार है, तो ये हमें ग्रुप में नहीं चाहिए। ये किसी को लगेगा कि अरे सिर्फ जो बच्चे जो बच्चे एकेडमिकली अच्छा नहीं कर पा रहे उनको बुली किया जाता है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं उनको भी बुली किया जाता है, कि अलग कर देना, इंक्लूड नहीं करना है, मुझे इनके साथ खाना नहीं खाना है, या उनको हेल्प ना करना, आज स्टेशनरी पेन पेंसिल लाना भूल गई तो नहीं देना है, या खुसुर पुसुर अलग से बात करना, उनको बड़े कन्वर्सेशंस में इंक्लूड ना करना, ये दिस इज अ सटल फॉर्म ऑफ बुलिंग। तो ये इससे क्या मतलब, ये कैसे निपटा जा सकता है? तो टू बिगिन विथ अगेन रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स को बताना जरूरी है, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। सो देर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू बी बुलीज एवरीवेयर, मतलब आप आज स्कूल में हो, आप बाद में कॉलेज में जाओगे, आप काम करने जाओगे, सभी जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे या अलग करेंगे।
तो एक तो अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, दैट इज द कोर अकॉर्डिंग टू मी. इफ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, इफ यू नो योर वर्थ, योर वैल्यू, आपको आपकी योग्यता पता है, तो बहुत सी चीजें आप अच्छे से मतलब क्या कहते हैं, मैन्यूवर कर पाते हो वो चीज में से. कैसे निपटना है, अच्छा ये इसका ओपिनियन है मगर ये सच्चाई नहीं है मेरे बारे में, ये हम समझ पाते हैं. तो ये चीजों से निकलने के लिए अवेयरनेस जरूरी है कि मैं बुरा नहीं हूँ, ये लोग मुझे अलग कर रहे हैं. ये अवेयरनेस लाना जरूरी है. और वो बात करने से, सिर्फ सहने से नहीं होगा. बाकी पेरेंट्स से बात करो, आप टीचर्स से बात करो, दूसरे फ्रेंड्स से बात करो, उससे ही ये चीज से निपटा जा सकता है. इन सारी मतलब ये जो हम बात कर रहे थे, मोलेस्टेशन, फिजिकल, इमोशनल, चाइल्ड अब्यूज, बच्चों के मन में, मैं खुद बच्चों के रोल में जाके सोच रहा हूँ, शायद उनके मन में एक कॉन्सिक्वेंस, इसके वजह से मेरी मतलब यू नो नेगेटिव कुछ हो सकता है मेरी जिंदगी में, एक कॉन्सिक्वेंस की का मतलब उनको डर रहता है, और शायद उसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते. तो उनको आप कैसे धैर्य देंगे कि डरना नहीं है कॉन्सिक्वेंस के बारे में? तो ऑनेस्टली ऐसा है कि हम जब ये चीज के बारे में सोचते हैं कि क्या परिणाम होगा अगर मैं ये बता दूंगी किसी को, तो एक तो आप वो व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और ये संभावना बढ़ जाती है कि आपके बाद वो और किसी के साथ भी यही करे. तो आप जब ये आप सिर्फ खुद को नहीं मगर वो व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये अगर आप समझ लो तो आप में धैर्य अपने आप बढ़ जाएगा कि मेरे बाद किसी और के साथ भी ये हो सकता है, अगर ये मुझे रोकना है तो मुझे बताना पड़ेगा. सेकेंडली, हमारा जो पॉक्सो एक्ट है, जो हमारे देश का लॉ है बच्चों के लिए, वो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली है. ये स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज जिसे हम बोलते हैं, वो अगर रिपोर्ट होता है और अगर आप पुलिस स्टेशन में आप बताते हो, तो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से इससे डील किया जाता है. बच्चों को बार बार पुलिस स्टेशन बुलाना या फिर तो 10 लोगों के सामने उनको ये चीजें बताने के लिए उकसाना, ऐसी चीजें नहीं होती है. एक स्पेशल व्यक्ति जो ट्रेंड है ये क्षेत्र में, उसको मतलब उसको असाइन किया जाता है. वो प्राइवेटली बच्चों से बात करते हैं, उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता है. और अगर कोर्ट हियरिंग भी होती है तो क्लोज रूम में होती है, 10 लोग वो नहीं सुनते हैं. सो दैट्स अबाउट पॉक्सो एक्ट. बट इन जनरल अगर हम किसी को नहीं कुछ बताते हैं या हम प्राइवेसी रखते हैं, तो इट इज नॉट इज गोइंग टू हार्म मी. सिर्फ मुझे नुकसान नहीं है, वो व्यक्ति को बढ़ावा मिल रहा है ये चीज से, और ये वो बढ़ावा मिलने से और नुकसान करेगा, और ये लंबे समय तक चलेगा, मेरे साथ भी लंबे समय तक चलेगा. ये हमें अगर समझ में आता है तो कुछ हद तक हम इस पे काम कर सकते हैं या ओपनली बात कर सकते हैं. फैमिली डायनामिक्स आई अंडरस्टैंड कि हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा ऐसा है कि यू कांट अनसेटल द रिलेशनशिप्स, विच इज अ फैक्ट. मगर बताना फिर भी जरूरी है, सो दैट अदर्स डोंट सफर इन दिस. एक चीज मैं आपने जो भी कहा है उसके थोड़ा आगे जाके कहता हूँ कि हमारे बचपन में इस चीज को स्टिग्मा कहा जाता था कि लेकिन अब तो आपको एक करेजियस पर्सन करके दिखा जाता है. अगर आप ऐसी चीजों में किसी को मतलब प्रोटेक्ट ना करें तो उन्हें मतलब इट टेक्स अ बिग ह्यूज करेज टू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स. ओके, क्योंकि आपने बहुत सही बात कही है कि प्रोटेक्ट करना बहुत मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत साल तक चले रहेंगे. आपने एक वर्ड यूज किया, स्टिग्मा. तो मेरे बचपन में एटलीस्ट साइकोलॉजी मतलब हमारे यहाँ एक दो थाना, she knows what I'm talking about. So there is a mental hospital in Thane. So केस मेंटल है. एक स्टिग्मा रहता था कि साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो एक स्टिग्मा रहता था.
तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे Yes. उसे मतलब उसका बदलाव कैसे हमें करना चाहिए समाज में आजकल, वो So, नहीं रहना चाहिए सच में? yeah. जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया बैक देन इन 2004, हम्म, तभी तो ये बहुत ज्यादा था। हम्म, मतलब सच में ऐसे लगता था लोगों को हाँ, कि ये पागल है, फिर ही साइकियाट्रिस्ट को मिल सकता है या हाँ, साइकोलॉजिस्ट को मिल सकता है, हाँ, या कुछ तो बहुत बड़ी खराबी हो गई है। तो अभी इतने साल में देयर हैज बीन अ फिनोमिनल चेंज। अभी उतना वैसे लोग नहीं सोचते हैं, मगर टू बिगिन विथ इफ वी लुक एट थिंग्स, मतलब अगर हम मेरा प्रॉब्लम है और मैं जा रही हूँ, ये नजरिए से हम जाएंगे तो शायद फिर भी स्टिग्मा लगेगा। मगर मैं ये सोचूं कि अवेयरनेस है, मुझे ये कठिनाई आ रही है और इसमें योग्य मार्गदर्शन करने वाला कोई है और वो मार्गदर्शन मैं लेने जा रही हूँ, ये सोचेंगे तो आपको इसमें स्टिग्मा नहीं। जैसे हम पैर टूट जाता है तो हम हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसे ही रहने दो, ठीक होने के बाद देख मतलब हो जाएगा, जरूरत नहीं है। हड्डी के डॉक्टर क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। वैसे ही साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज के बारे में शास्त्रीय तरीके से सोचना जरूरी है कि वो अपने आप सही होने वाली चीजें बहुत बार नहीं होती हैं, और योग्य मार्गदर्शन से अगर हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, या हम अच्छा ज्यादा अपना शिक्षण ले पा रहे हैं, अच्छी नौकरी कर पा रहे हैं, या हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो ये कर व्हाई नॉट, व्हाई लुक एट इट एज सिर्फ पागल लोग ही जाते हैं। लुक एट इट एज मैं अवेयर हूँ और इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझे फायदा हुआ है। ये जो बदलता हुआ जो अवेयरनेस है, दैट इज मोर क्योंकि लोग जा रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि मैं गया था और मुझे बहुत फायदा हुआ। सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे तरीके से लोग अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं कि पूरे हाथ से बाहर चीज निकल जाने के बाद जाने से अच्छा है कि आप इनिशियल फेज में ही चले जाओ। आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहा हूँ, या मैं एग्जाम के वक्त में बहुत ज्यादा डर रही हूँ, तो मुझे जाना जरूरी है। तो ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है और इसके वजह से स्टिग्मा कम हो रहा है कि मैं जा रही हूँ और मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के बाद जाने के बाद मैं बहुत अच्छा एग्जाम ले पा रही हूँ, और मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं इतना अच्छा एग्जाम दे पाती हूँ, मैं मुझे मदद मिलने के बाद। सो ये अवेयरनेस लोग बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपना एक्सपीरियंस उससे बढ़ा है। सो दैट हैज प्लेड अ बिग रोल। हम आपको ऑनलाइन ढूंढ रहे थे और आप नहीं है, और एक ही चीज हमें दिखाई दी, 2 बच्चों की माँ। बस Yes. आपने उतना ही कुछ लिखा है कहीं तो। Yes. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट एट होम, हाउ आर यू एज अ मदर एंड हाउ डू यू डील विथ योर ओन किड्स? क्योंकि आई एम श्योर आपके मन में ये प्रश्न तो रहेगा जरूर, बताइए। 2 बच्चे हैं मेरे, एक 12 साल का है और हस्बैंड पति भी है साथ में। तो हाउ डू यू हैंडल 3 किड्स, राइट? सो हाँ, तो मेरे हस्बैंड साइंटिफिक ऑफिसर है बीआरसी में, और मेरा लड़का 12 साल का है। नाम उनका मिस्टर कुलदीप जोशी। हाँ। कुलदीप जोशी, हमारी शादी को अभी 14 साल हुए हैं। 12 साल का मेरा बच्चा लड़का है, नाम रुद्र जोशी, और मेरी लड़की 8 साल की होगी अभी। शी इज हर नेम इज नंदिनी जोशी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक्स से मैं जो बनी हूँ सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की वजह से नहीं बनी हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हर बार मैं जब पेशेंट्स से बात करती हूँ, मैं फैमिलीज से बात करती हूँ, तो आई बिकम अ बेटर साइकोलॉजिस्ट, आई बिकम अ बेटर प्रैक्टिशनर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है। जब मैं पेरेंट बनी, या मैं वो दौर से गुजरी, बच्चों को हैंडल करना, एक बच्चे को हैंडल करना, फिर 2 बच्चों को हैंडल करना, उससे जो मुझ में चेंज आया है, आई स्पीक टू पेरेंट्स इन अ डिफरेंट वे नाउ। I can handle children, I look at children also in a different way. तो मेरा जो काम है, मेरे हिसाब से 2 बच्चों की माँ बनने के बाद कई मतलब परसेंटेज से इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कि हाउ इज इट एट होम, हाउ टू डील विथ सर्टेन थिंग्स एट होम।
तो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ने 100% मुझे नहीं पढ़ाया है, और लाइफ एक्सपीरियंसेस ने एंड एक्चुअल ऑन फील्ड काम ने मुझे पढ़ाया है. दैट इज व्हाई दैट्स पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी. बीइंग अ वाइफ एंड a parent has really made me a better psychologist, according So to me. good to see you so proud of it. Yes, absolutely, absolutely. Thank you. एक आखिरी सवाल. As a psychologist, what hacks or tricks or ideas बच्चों को आप दे सकती है कि आप ये मतलब लेजीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बहुत सारे इश्यूज मेरे ख्याल से बच्चे मतलब सह रहे हैं, बताते नहीं है शायद, लेकिन कुछ तो नॉर्मल रूटीन, कुछ आइडियाज आप दे सकते हैं उनको? Yes. कुछ मतलब जो आप साथ लेके जा सकते हैं? So honestly, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को बहुत मीडिया टॉलरेट करना पड़ता है. टैब्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवीज, जो हमें लगता है कि हम फॉर्चुनेट थे कि हमारी पढ़ाई हो गई. Exactly, yes. और हम ये सब टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे तभी. इट इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन कि वो कैसे बंद करूं और मैं कैसे पढ़ाई करूं. मोबाइल है, मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे मूवीज देखने हैं, मुझे सीरियल्स देखने हैं. इट इज वन बिग चैलेंज दैट दीज चिल्ड्रन आर फेसिंग एंड हैट्स ऑफ. आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, हम शायद नहीं कर पाते. तो जितना हम आउटडोर एक्टिविटीज में हम खुद को उलझाएंगे, उतना ये चीज से अपने आप दूर रहेंगे. सो इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग स्क्रीन टाइम, इट्स अबाउट इंक्रीजिंग योर ओवरऑल अदर एक्सपोजर. जितना ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स में हम ले रहेंगे, जितना आउटडोर एक्टिविटीज में रहेंगे, उतना ये चीज से अपने आप ये कम हो जाएगा. फिर आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ is 100 times more interesting than the life which we get on media. Secondly, ये जो laziness या procrastination जिसे बोलते हैं कि एग्जाम के वक्त कैसे पढूं मैं, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे मन नहीं कर रहा है. तो we can always have goals, we can have mini goals. इतनी सारी पढ़ाई करनी है ऐसे लगता है, तब cut it in small pieces. That is more doable. जैसे मुझे अगर बहुत लोगों का खाना बनाना है तो मैं अगर उसी के बारे में सोचती रहूंगी तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा. मगर मैं सोचूंगी कि मुझे सब्जी कट करनी है, अभी मेरा एम है सब्जी कट करना. वैसे ही पढ़ाई के वक्त आप सोचोगे कि मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, उसके अलावा मुझे आज ये चैप्टर करना है और ये चैप्टर की पढ़ाई आज शाम तक मैं पूरा करूंगी. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट कैन बी एनीथिंग, 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स. तो हमारे गोल अगर हम मिनी गोल्स में कन्वर्ट करें तो दे बिकम मोर इजी एंड दे बिकम मोर रीचेबल, जिससे कि हम बड़े गोल्स को बहुत आसानी से वी कैन रीच देम विदाउट एनी डिफिकल्टी. सो there's somebody who is agreeing or disagreeing, I don't know, मगर these are few ways in which we can deal. एग्जाम स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत कैसे होगा, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी. ये बहुत कॉमनली दिखता है, बहुत कॉमनली मैथ्स, साइंस आर कॉमन कल्प्रिट्स. बहुत बार लैंग्वेजेस आर कल्प्रिट्स. सो देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेस व्हिच हेल्प अस calm down. Good night sleep always is known to calm us down. But breathing exercise, जो हमारे age old breathing exercises है, अनुलोम विलोम है, या very simple exercise of 4 counts of breathing in, 2 counts of holding, 8 counts of breathing out. ये breathing exercise पे हम focus करें तो बहुत सी हमारी anxiety है, उस पे हम काबू ला सकते हैं. I can go on and on about how to deal with exam stress. एक एडवाइस मैं भी दूं. इनकी बात सुन के मैं प्रभावित हो गया हूँ. शायद एक चीज मुझे बच्चों को कहनी, मतलब आपने जो कहा उसी के आगे लेके जाता हूँ. कितने बार आप अपने फ्रेंड्स को हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट करके विश करते हैं? अभी तो जमाना आ गया है कि लोग पूरा लिखते भी नहीं है हैप्पी बर्थडे, HBD लिखते हैं, राइट? तो ये तो सारे शॉर्टकट्स हम कर रहे हैं. शायद उनको जाके मिले, शायद उनसे बात करें पर्सनली. अगर ये चीजें आप करते हो तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए.
online is supposed to be an extension. It's supposed to help you, but should not compensate for other things that you're doing. So just याद रखें, और आपने भी यही कहा है, मैं just थोड़ा सा engaging in artwork, yes. engaging in real conversations rather than having 100 followers exactly, on media, exactly. having real 10 friends who can stand by your side. Correct. कि अगर कुछ डिफिकल्टी आ जाए तो मैं ये 10 लोगों को बुलाऊंगा या 2 लोगों को बुलाऊंगा, वो मेरे लिए खड़े हो जाएंगे. That is real strength. Having those 100 followers is not real strength. FOMO करके एक वर्ड है. हाँ. अभी उसके बारे में बताएंगे. FOMO is what? आपने सुना है FOMO के बारे में? नहीं, अच्छा है. Fear of missing out. जैसे मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ तो क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता चल रहा है. लोग क्या कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे है, तो शायद मैं मिस कर रही हूँ कि वो क्या कर रही है, या वो लोग जा रहे हैं तो शायद बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ, वो मिस कर रही हूँ, उसके लिए बुरा लगना. So that is, but we need to be more into what we are enjoying right now rather than what we are missing out, because that is not going to come back. Thank you so much, Meenal. My pleasure. नमस्ते मैम, मैं श्रावणी, मैं जैन बुल्डाना से हूँ. मैम मुझे ये सवाल पूछना है, जब हमें किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम उस गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Okay, so to begin with, गुस्सा क्यों आ रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने से, वो दबाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, वो कहीं और कुछ तरीके से निकल ही जाता है. तो समझना है कि क्यों आ रहा है, और फिर समझने के बाद बहुत बार गुस्सा एक सैडनेस भी हो सकता है कि मैं एग्जाम में सही नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है, मगर वो मैं गुस्से के रूप से निकाल रही हूँ, जैसे मैं दरवाजे को लात मार के जा रही हूँ या मम्मी पे गुस्से से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल में फ्रस्ट्रेशन आ रही है. तो रीजन समझना जरूरी है कि व्हाई एम आई गेटिंग एंग्री. बात करना जरूरी है कि मम्मी मुझे ऐसा हो रहा है, या फ्रेंड को बताना जरूरी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है जिसके वजह से. सो द मोर यू कम्युनिकेट, द मोर यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, द मोर इट विल बी डीलेबल. मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से अच्छे से हैंडल कर पाओगे. दूसरा, कैसे हैंडल करना है. अभी गुस्सा आ रहा है तो एक तो लिख लो, अगर सामने कोई नहीं है बात करने जैसा तो लिख लो, डिटेल में लिख लो जो आपके मन में आ रहा है, वो सारी चीजें लिख लो जो आप वो व्यक्ति को नहीं बता पा रहे हो. सो आपके मन से वो बात निकलेगी. अगर आप मन में रखोगे तो वो ऐड होता जाएगा, बिल्टअप होता जाएगा कि ऐसा हुआ, उसके बाद और हुआ, मैं किसी को बता नहीं रही हूँ तो और बढ़ता जा रहा है. डायरी लिखना, रोज अपने मन की बातें लिखना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेज इन विच अपने इमोशंस रेगुलेट हम कर सकते हैं. अगर एक रूम में आप हो, किसी के साथ बहुत गुस्सा आ रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं शायद कुछ गलत बोलने वाली हूँ, तो निकल जाना रूम से 5 मिनट के लिए और बोलना कि मम्मी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ. या फ्रेंड के साथ गुस्सा आ रहा है तो वहां से निकल जाना और 5 मिनट के बाद वापस आ जाना. ये कुछ तरीके हैं जिससे हम खुद को काम डाउन कर सकते हैं. सो ऑल्सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प when you know कि हाँ अभी मैं कुछ बहुत गलत कर सकती हूँ गुस्से में. तो जस्ट सिंपली गोइंग इन अ कॉर्नर, क्लोजिंग योर आईज, ब्रीदिंग करना, उससे आपको बेनिफिट समझ में आएगा उसका. मैम अगर किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है पर हमें पता है हमें उन पे ट्रस्ट नहीं रखना है, फिर भी हम ट्रस्ट कर रहे हैं और वो हमें पढ़ाई में, उनकी वजह से हमारी पढ़ाई भी खराब हो रही है. मतलब वो तो पढ़ती नहीं है, मतलब पढ़ती है लेकिन हमारे सामने नहीं पढ़ती. इंटरेस्टिंग. और एक क्वेश्चन है मैम, अगर किसी को कभी ऐसा लगता है कि हमेशा लगता है कि हमारे मन में ही लगता है कि कोई है हमारे साथ, और उनसे बातें करना, उनसे हर चीज पूछ के करना या फिर कुछ करते वक्त उन्हें बताना, ऐसा कब होता है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना मगर वो व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है, इज दैट द राइट थिंग? शायद. हाँ. तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है मगर आपको कुछ रीजन की वजह से वो रिश्ता मेंटेन करना है, आपको रिश्ता भी तोड़ना नहीं है,
तो इवेंचुअली यू विल हैव टू डिटैच ना, कि दोस्ती अलग बात है और ट्रस्ट अलग बात है, कि ये मैं बहुत ज्यादा निर्भर रहती हूँ इस पे तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये कन्वर्सेशन खुद का रहना, इनसाइट बिल्ड करना, उससे आप शायद कुछ चेंज ला पाओगे। एक मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो भी मेरी दोस्ती टूटने नहीं वाली है, ये विश्वास। मेरी दोस्ती अलग है और मेरा ट्रस्ट अलग है और मेरा काम करने का तरीका अलग है, ये डिमार्केशन समझना बहुत जरूरी है। एम आई आंसरिंग? मैं आपके क्वेश्चन को सब आंसर कर पा रही हूँ? ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या आप रिपीट कर पाओगे कि आप किसी को ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई इंसान है या फिर कोई तो है, उनके दिमाग में ही उन्होंने उसे बनाया है, वो उन्हें दिखता नहीं है, लेकिन वो हर चीज उनसे पूछते हैं या उन्हें बताते हैं। अगर उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट करना है तो वो उन्हें बताकर ही करते हैं। मतलब उनके मन में कोई है, लेकिन वो कोई कौन है पता नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल। सो सी, दिस कैन बी अ कोपिंग मैकेनिज्म समटाइम्स। अगर जिसे कहते हैं ना एक्चुअल दिख नहीं रहा है या एक्चुअल वो व्यक्ति आपको चीजें करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो एक बहुत बड़ी पैथोलॉजी हो जाती है। मगर जब तक वो नहीं है और आप सिर्फ सोच रहे हो कि हाँ मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैं सब बता के करती हूँ, तो इट कैन बी अ कोपिंग मैकेनिज्म व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रेंड। मतलब अगर सच में आपका कोई फ्रेंड नहीं है और आप ऐसे निर्भर करते हैं तो कुछ हद तक उसका फायदा हो सकता है। मगर रियल फ्रेंड्स में जो आजू बाजू में है, इन रियल फ्लैश एंड ब्लड, ऐसे लोगों में घुल मिलना, उन पे निर्भर रहना, ये हमेशा ज्यादा फायदेमंद है। मगर कोई भी नहीं है, अकेली है आप, तो कभी ये कोपिंग मैकेनिज्म फायदे कारक भी हो सकता है। और मैम अगर वो चैलेंजेस दे रहे हो, मन में ही है लेकिन वो चैलेंजेस दे रहे हैं, मतलब जैसे एक स्टेज छोड़ के चलना या फिर किसी से झगड़ा करना। तो ये मतलब इसमें आके आपका बहुत ज्यादा समय जा रहा है या आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा उसी के बारे में सोचते हो कि आप लोगों से दूर जा रहे हो उसके वजह से? नहीं, ये मेरे साथ नहीं होता है, मेरी फ्रेंड की एक बहन है उसके साथ होता है। तो इससे ना बहुत थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है कि और क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बार अगर ये इतना ज्यादा हद तक हो रहा है और जिसके वजह से आप काम नहीं कर पा रहे सही से या पढ़ नहीं पा रहे या लोगों में घुल मिलना आपका बंद हो गया है, तो ये एक कुछ सीरियस कंडीशन का भी एक मतलब हिस्सा हो सकता है। मगर मैं अभी डिटेल्स नहीं है तो इस पे पूरा मैं बता नहीं पाऊंगी कि है कि नहीं। But if it is really causing some kind of distraction for her every day, then it is something we need to. मैम वो एक बार आँख बंद करके स्टेयर्स के ऊपर जा रही थी। तो it can be dangerous. उनको मदद लेनी चाहिए। मदद लेना जरूरी है, बात करना जरूरी है, डिटेल बताना जरूरी है किसी को। यहाँ भी कोई मैम, पढ़ाई करते वक्त या कुछ एक्टिविटी करते वक्त दिमाग में कुछ और ही बात करते चलना या कुछ और ही ख्यालों में रहना, तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? ओके, सो डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। ये जो आप बोल रहे हो कि मन में एक चलता रहता है और दिमाग में एक चलता रहता है, करना कुछ और है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन माइंड ना, कि हम हमेशा सिर्फ एक चीज 100% नहीं कर पाते हैं। कुछ तरीके से कुछ तो विचार चलते रहते हैं। सो धीरे धीरे अगर मीडिया के वजह से हो रहा है तो वी ऑलवेज गिव एडवाइस कि आप फोन दे दो किसी को, या आप जनरली मीडिया डोंट सिट इन द प्लेस वेयर यू हैव एक्सपोजर टू मीडिया। ये एक तरीका है। और दूसरा एक तरीका है कि जितना हो सके टाइम योर सेल्फ। एक घंटा अगर आप पढ़ रहे हो, 2 घंटा एट अ स्ट्रेच पढ़ रहे हो, तो ह्यूमन माइंड इज सच कि आप डिस्ट्रैक्ट होने ही वाले हो। तो आप आधे घंटे के लिए बैठो, फिर आप ब्रेक लो, फिर आधे घंटे के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठो। इस तरीके से शायद आपकी क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन कैन इम्प्रूव, यू कैन फोकस बेटर। मगर अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है probably then it can be part of hyperactivity and inattention which needs help. हेलो मैम, माय नेम इज नम्रता, आई एम फ्रॉम JNU सोलापुर। मुझे आपसे पूछना है कि अगर हम टेंशन में हो या अगर डिप्रेशन में चले गए तो हमें क्या करना पड़ता है जिससे हम हमारे मन को शांत कर सके? ओके, सो अगर क्लासिक मतलब
पैथोलॉजिकली डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, तो टू बिगिन विथ साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेना इम्पॉर्टेंट है. डिप्रेशन कैन बी related to our neurotransmitters. A lot of times it is purely biological in nature. जैसे हम सेरोटोनिन या डोपामाइन कहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो मेडिसिन लेने से डिप्रेशन से हम डील कर सकते हैं. सेकेंडली, हमारे कुछ लाइफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, जैसे किसी करीबी व्यक्ति की मौत हो जाना, या घर पे कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाना, फाइनेंशियल इश्यूज, या बहुत झगड़े घर पे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डील विद इट, और यू हैव सम ट्रॉमेटिक पास्ट एंड यू आर नॉट एबल टू डील विद इट, तो साइकोलॉजिस्ट से मदद लेना जिससे कि वो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए हमें मदद करे. इससे डिप्रेशन या स्ट्रेस से फायदा हो सकता है, स्ट्रेस में फायदा हो सकता है. मेरा नाम शिवस्तुति है. कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल स्टडी ले लो कि क्या होता है कि घर वाले सब मतलब सभी कह रहे थे कि तुम कर सकती हो, लेकिन कई बार होता है कि मतलब हमारे मन से मतलब ये नहीं होता कि हम नहीं कर पा रहे, चल अच्छा छोड़ दे, लेकिन सब बता रहे होते कि नहीं तुम्हें करना ही होगा. तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते भी और वो हमको पता है कि 2 मन होते हैं, अंतर्मन और बाह्य मन जो होता है, तो हमें इंस्ट्रक्शंस देते, लेकिन जो बाहर वाले देते हैं वो सिर्फ हमारे मतलब बाह्य मन में जाते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं वो अंतर मन तक जाते हैं वो इंस्ट्रक्शंस. तो उसके पीछे अच्छी थ्योरी क्या है कि वो क्यों जाते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट की क्यों जाते हैं बाहर तो बिगिन विथ थोड़ा सा रैपो बिल्ड होता है. हम आपके फैमिली मेंबर नहीं है, ओके, तो हम आप जैसे फैमिली मेंबर ने आपको सालों से बचपन से देखा है, और हम कंप्लीट स्ट्रेंजर होते हैं वो व्यक्ति के लिए, और वो हम स्ट्रेंजर होने के बावजूद हम अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं तो वो एक अलग महत्वपूर्ण चीज बन जाती है वो व्यक्ति के लिए, क्योंकि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी, हम प्यार है वो व्यक्ति से इसलिए वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहे हैं. हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से वो व्यक्ति की जो योग्यता है या कैलिबर है या वैल्यू है वो उनको समझा रहे हैं, या उन इंसाइट बिल्ड कर रहे हैं वो चीज़ के लिए. तो वो ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने के कारण ज़्यादा विश्वास लोगों का बैठता है कि अरे ये मुझे जानती नहीं है, या मेरा उनसे अलग बाकी बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये मुझे कह रही है या मुझे अलग तरीके से विश्वास दे रही है, तो शायद इसमें कुछ अलग सच्चाई है. दैट इज वन ऑफ द रीजंस. am I answering your did I answer your मैम? मेरा नाम राजनंदिनी है, लातूर से. मैम, किसी में अगर ऑटिज्म हो देखे तो वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि हमें बहुत जल्द थेरेपी शुरू करना ज़रूरी है. जैसे स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने आपको कहा, वो जल्द से जल्द शुरू करना ज़रूरी है, जिससे कि सिम्टम्स काबू में आए और जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल सोसाइटी में अपने चीज़ें अच्छे तरीके से करने के लिए ट्रेन हो सके. जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरी तरह ऑटिज्म चला गया ऐसे नहीं होता है, मगर उसके सिम्टम्स काबू में आ गए और वो व्यक्ति अच्छे से लाइफ जी रहा है, ये एक मुमकिन है, पॉसिबल है. तो उसका बेसिक यही है कि जितने जल्दी हो सके थेरेपी, अवेयरनेस पेरेंट्स में रहना. बहुत बार हमारे समाज में ऐसा मतलब मान्यता है कि इसके पापा भी लेट बात कर रहे थे, इसकी मम्मी भी लेट बात कर रही थी, तो ये भी कर लेगा, 5 साल में कर लेगा. तो जिसके वजह से हम बहुत लेट जाते हैं डॉक्टर्स के पास, बहुत थेरेपी लेट शुरू होती है और फिर जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता. अगर 5 साल के बाद थेरेपी शुरू हो जाए तो वो इतना फायदे कारक नहीं होती जितना 2 साल के बच्चे में फायदे कारक होती है. सो थेरेपी, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आगे व्यक्ति कैसी लाइफ जी पाएगा. मैम, मेरा नाम नेहा है. मेरा खुद का एक प्रॉब्लम है. मैं मैथ का कोई भी क्वेश्चन जैसे सॉल्व करती हूँ तो तरीका गलत होता है पर आंसर राइट आता है. ऐसा क्यों? ये साइकोलॉजी का कोई पार्ट है क्या? हमेशा होता है. मतलब आपके स्टेप्स गलत हो जाते हैं. हाँ, पर आंसर जो राइट आता है हमेशा.
तो थोड़ा सा देखना जरूरी है कि तो आप वो मैजिक लग रहा है। हाँ कि आप राइट आंसर की तरफ कैसे आते हैं, व्हाट डू यू डू टू कम टू द राइट आंसर बट योर स्टेप्स आर रॉन्ग. सो मे बी शायद आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, आप मतलब कैलकुलेट ओरली आप अच्छा कर पा रहे हो मगर आप लिख नहीं पा रहे हो, वो जो आप मन में स्टेप्स करते हो वो पेपर पे नहीं उतार रहे हो, जिसके वजह से आप स्टेप्स आपके गलत होते हैं मगर आंसर सही होता है. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन. मगर आपके स्टेप्स देखना जरूरी है कि क्या होता है. गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज सृष्टि, आई एम फ्रॉम सांगली. मेरा क्वेश्चन ये कि आपने जैसे बताया कि हम जिसमें अच्छा है वो हमें करना चाहिए ज़्यादातर, जिसमें हम अच्छा नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए, पर जिसमें हम अच्छे नहीं है वो हम ज़्यादा कंसंट्रेशन से करें तो वो हो सकता है या वो जिसमें हम अच्छे वही करें. सो ऑनेस्टली ये ऐसा है ना कि एक बहुत कॉमनली गिवन एग्जाम्पल है कि हम मछली को झाड़ चढ़ने के लिए नहीं बोल सकते ना, और उससे हम उसकी योग्यता परख रहे हैं तो वो गलत तरीका है. सो दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल कि जो व्यक्ति जिस चीज में अच्छा है उसी वो चीज करना जरूरी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकती है उससे उससे उस तरफ हम जाए ही नहीं. So there are some areas जैसे maths है या there are some other languages and even science. If you study in a different way, आप तरीका बदले या आप गाइडेंस अलग तरीके से ले तो पॉसिबिलिटी है कि आप इम्प्रूव हो. So बहुत बार हम जो बोलते हैं ना ये मेरे लिए है ही नहीं, वो शायद हमारा लो कॉन्फिडेंस रहता है और शायद हम अलग तरीके से वही चीज करें तो शायद उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं. सो वन हैज टू रियली अंडरस्टैंड कि ये मेरा लो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये मैं कर नहीं पा रही हूँ या सच में नहीं कर पा रही हूँ. सो ऑनेस्टली अगर मैं ड्राइंग करने बैठूँ तो शायद मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, कितना नो मैटर व्हाट ट्रेनिंग आई गेट आई मे नॉट ड्रॉ. मगर ऐसा है कि अगर वही चीज कोई दूसरे एरिया में अगर मैं करने लगती हूँ, अगर इफ आई स्टार्ट राइटिंग एसेज मैं बहुत अच्छा कर पाती हूँ तो अच्छे ट्रेनिंग की वजह से मैं इम्प्रूव भी कर सकती हूँ. तो ये जानना जरूरी है कि सच में मैं नहीं कर पा रही हूँ या मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है. सो दैट ओनली एक्सपीरियंस एंड योर टीचर्स कैन टेल यू. हेलो मैम. लास्ट क्वेश्चन. हेलो मैम, माई सेल्फ भाग्यश्री, आई एम फ्रॉम JNV अवतमाल. मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो साइकेट्रिक्स जो हमें मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वो हार्मफुल हो सकती है? टू बिगिन विथ ये बहुत कॉमन मिथ है कि उससे नुकसान होता है, उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है. ऐसा नहीं है. साइकेट्रिस्ट जो मेडिसिन देते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो भी तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और उससे हमारी लाइफ इम्प्रूव होती है ना कि ख़राब होती है. मगर कुछ मेडिसिन ऐसे हो सकते हैं जिससे कि कुछ तरीके के जैसे वजन बढ़ सकता है या थोड़ी नींद ज़्यादा आ सकती है, मगर डॉक्टर्स पूरी जानकारी देने के बाद ही आपको ये मेडिसिन देंगे और ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स का जो नुकसान है उससे फ़ायदा कई गुना ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये मेडिसिन दिए जाते हैं. तो लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होता. मैम अगर हो गया तो वो रिकवर हो जाएगा? मेडिसिन के वजह से नुकसान ऑफ कोर्स होता है. थैंक यू मिनल दी, दिस वाज वंडरफुल. थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाँ, मैंने आपसे इतनी सारी बातें चीजें अभी सीखी है कि मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ यहाँ बैठ के आपके साथ बातें थैंक यू. कर रहे हैं. शायद आपको भी ऐसा अनुभव लगा हो शायद. तो एक बार जोर से हमारे